students, welcome back to the online sessions of Science Class 10. I hope you and family will be safe in this pandemic situation. So I just requested you, don't go outside your homes. Also, able to go into the crowded places. And if it should be necessary, you have to go outside your homes, use the properly face mask covers, take sanitizers with you, always wash your hands at the specific time of interval up to 20 seconds. So stay home and stay safe. Students, we are discussing about the physics in chapter number 10, the refraction of light, as well as we are discussing about the reflection of light. So in the previous three topics, we discussing about the reflection terms, how the reflection that can be done through the spherical mirror or maybe a plane mirror, right? Also, we have to derive the mirror formula as well as its magnification. We have to derive. Also, we have to discussing about the characteristics of lights. We have also discussing about the types of images. Also, the types of regular reflection and irregular reflection. Also, we discussing about the rules of the incident and the reflections angles. Today we will discussing about the refraction topic. R-E-F-R-A-C-T-I-O-N. Refraction. We have to discussing about the next topic, that is called the refraction. Now, first of all, what do you mean by the refraction? What is the refraction of light? Then in terms of what do we mean, or what is generally said to be a refraction of light? So when a light of ray, or maybe when a ray of light that enters oblique from one transparent medium to another transparent medium, when the ray of light obliquely that moves from one transparent medium to another transparent medium, its velocity changes. एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर अगर लाइट ऑफ रेज एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होता रहती है, विच इज गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन. तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएटेड होता है, एंड विच जनरली सेपरेट्स इट्स इन अ सरफेस ऑफ टू मीडियम. ये जो फिनोमेनन बनता है, इस फिनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन. एक बार फिर कहता हूं, व्हेन द रे ऑफ लाइट दैट एंटर्स obliquely from one transparent medium to another transparent mediums, it should be its velocity change, and it is deviated from its original direction, and that media that separated into the two different surface, this phenomenon is called as the refraction of light. Okay, so इसको हम refraction of light कहते हैं. अभी एक टॉपिक हमें समझना है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम समझेंगे, तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाया. इस फिगर के अंदर आप देखिए दो अलग अलग तरह के मीडियम्स मैंने यूज किए, मीडियम 1 और मीडियम 2. मीडियम 1 को M1 नाम दिया है, मीडियम 2 को मैंने M2 नाम दिया है. सपोज एयर का मीडियम है, इस तरफ वाटर का मीडियम है. सो एज शोन ऑन द फिगर, फिगर के अंदर आपको दिख रहा है कि PQ जो है, P और Q, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑन द सरफेस ऑफ पॉइंट Q. PQ जो है वो इंसिडेंट हो रहा है Q पे ऑन द सरफेस ऑफ AB. AB सरफेस पे आ रहा है, तो उसके वजह से दो अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं मीडियम. एक मीडियम 1 बन रहा है और एक मीडियम 2 बन रहा है. दो अलग अलग मीडियम्स बन रहे हैं. और यहाँ पे जो QR बन रहा है, ये जो QR जो बन रहा है, QR को क्या कहेंगे? QR इज द मीडियम ऑफ द सरफेस. ये जो QR इज दैट काइंड ऑफ द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टेड सरफेस, जो क्या करेगा? एक स्पेसिफिक एंगल क्रिएट कर रहा है. यहाँ पे M और N का फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है. सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिंग द एंगल्स, जो हम कह सकते हैं इसको MQN का जो फॉर्मेशन होगा वो एंगल ऑफ सेपरेटिंग टू सरफेस में डिवाइडेड कर रहा है. तो ये जो फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है? व्हाट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड. ओके, चलिए इसको O नाम दे दीजिए. Q नाम आप जो भी नाम देना चाहें, यू हैव टू बी डिनोटेड एज अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेशन. हम इसको ओरिजिनल Q आप कोई भी नाम दे सकते हैं. सो एज ऑन इन द फिगर, फिगर के अंदर जो आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड PQM. ये जो एंगल बन रहा है PQM, इस एंगल को आप क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल कहेंगे, जिसका नाम दिया है θ1. उसी तरह यहाँ पे डाउन साइड में आप देखेंगे तो RQN का है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसका नाम θ2 दिया है. एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1, एंगल ऑफ इंसिडेंट θ2. सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, स्नेल का जो लॉ कहता है उसमें बताया है कि आपका जो sin θ1 अपॉन sin θ2 इज इक्वल टू क्या होता है? ऑलवेज भी कांस्टेंट होता है. सो θ1 sin θ2 ऑलवेज भी कांस्टेंट. So that particular equation having to be a constant is generally known as a refractive index of medium 2. ये medium 2 के लिए वो क्या हो जाएगा? refractive index हो जाएगा. और medium 1 के लिए वो क्या हो जाएगा? relative index हो जाएगा. वो medium 1 के लिए relative index होगा
और मीडियम 2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो आप उसको लिख सकते हैं n21, आप उसको ऐसे फॉर्मेशन में आप लिख सकते हैं कि n21, ओके, n21 इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा वो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2। So the relative refractive index can be expressed in the terms of ratio of velocity. जो relative refractive index होगा that can be generally denoted in the terms of the velocity. So the ratio of velocity of the perceptual formation, इसका velocity v1 लिख सकते हैं मीडियम 1 का, v2 velocity मीडियम 2 के लिए लिख सकते हैं, that is generally called as the index of medium 2. So आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं n21 is equal to, वैसे भी लिख सकते हैं n21 is equal to v1 by v2, because if we have to be consider that terms, it can be easily expressed in terms of velocity. So relative refractive index then can be easily implemented by the terms of their velocity. तो ऐसे आप उसको समझा सकते हो, that is generally called as a relative refractive index to the particular medium 1 और medium 2. ये चलिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कशन करना है, that we have to discuss, that is called absolute refractive index. ये तो आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, अभी जो हमें पढ़ना है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, इफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मे बी द रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम दैट रिस्पेक्ट टू और मे बी दैट रिफर टू द रिस्पेक्ट ऑफ द वैक्यूम मीडियम, अगर वैक्यूम के साथ कंपेयर होता है तो जो इंडेक्स मिलता है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सो अगर वैक्यूम है तो इस वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम जनरली डिनोटेड बाय द c, वैक्यूम की जो वेलोसिटी होती है उसको c से डिनोटेट करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बनता है n is equal to c upon v, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट जो हमें ऑब्टेन करना है दैट इज अबाउट द स्नेल्स लॉ। स्नेल का लॉ हमें ऑब्टेन करना है। सो स्नेल्स लॉ अगर मुझे ऑब्टेन करना है तो वहां पे दो चीजें हमें ध्यान रखना होता है कि स्नेल्स लॉ के अंदर जो n1 is equal to sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 का जो कंपोनेंट्स होता है उसमें ये जो दोनों मीडियम के जो दोनों एंगल है n1 sin थीटा 1 is equal to n2 sin थीटा 2, ये दोनों एंगल आपके सेम होते हैं, ऐसा हमें बताना है। कैसे इसको प्रूव करेंगे, देखिए स्नेल्स लॉ के लिए कि जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, स्नेल का जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप समझिएगा। जब मैंने आगे लिखा था कि n21 is equal to sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2, स्नेल्स का जो रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, यूजिंग द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ स्नेल, n21 is equal to sin थीटा अपॉन sin थीटा 2। अब जो वेलोसिटी है लाइट की दैट इज कंसीडर्ड एज v1 इनटू द मीडियम 1, और जो वेलोसिटी वैक्यूम का जो है उसको हम c से कंसीडर करेंगे मीडियम 1 के लिए। तो मीडियम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको रिफ्लेक्टिव फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, n1 is equal to c upon v1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेशन में। वैसे ही अगर आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे तो n2 is equal to क्या हो जाएगा, n2 is equal to हो जाएगा c upon v2 according to the refractive absolute refractive index. Using the Snell's law, the reflection का जो लॉ है वो है n1 is equal to sin थीटा 1 upon sin थीटा 2। अगर वही कॉन्सेप्ट को अगर आप absolute refractive index according to the velocity अगर आप कंपेयर करते हैं मीडियम 1 के लिए तो n1 is equal to c upon v1 की वेलोसिटी हमेशा वैक्यूम्स के कंपैरिजन में कंपेयर करने पे ही आपको absolute refractive index मिलेगा। तो इस फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो नाउ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द फॉर्मेशंस, जिसमें इसकी जो वेलोसिटी होगी सेकंड मीडियम का जो फर्स्ट मीडियम की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अगर आप देखेंगे तो n21 is equal to v1 by v2, क्या मिलेगा, n21 is equal to v1 by v2। अब ये v1 by v2 दोनों को हमें क्या करना है, वैक्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ v1 upon v2 into c upon c, दोनों को इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सो जब आप इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यूज करेंगे तो जो उसका फॉर्मेशन जो होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज होने पे c dash v2 अपॉन c dash v1, ओके, c dash v2 अपॉन c dash v1 ऐसे फॉर्मेशन का लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशंस का जो फॉर्मेशन बनता है इस फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, n21 is equal to sin थीटा 1
अपॉन साइन थीटा 2 ऐसा मिलेगा इज इक्वल टू व्हाट n2 अपॉन n1 सेकंड अपॉन n1 फर्स्ट टर्म हो गया। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्मेशन लेंगे तो n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा n2 sin थीटा 2। ये जो फार्मूला मिलेगा इस फार्मूला को आप क्या कहते हैं, ये इक्वेशन जो हो गया वो स्नेल्स लॉ का इक्वेशन है, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो उसमें ही एक चीज हमें समझना होता है कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है। ऑप्टिकल रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में क्या डिफरेंशिएशन है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहता है। तो हमें समझना है कि जो रिलेटिव इंडेक्स है, जो अभी आपने फाइंड आउट किया, आगे के टॉपिक में हमने समझा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। The relative index of a specific medium is larger than the other medium। किसी दो मीडियम जैसे होते हैं तो किसी एक मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से अगर लार्जर है तो उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, दैट इज मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो हो जाएगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और जिसकी डेंसिटी कम है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल रेयर मीडियम। तो जैसे लाइट ऑफ रेज इंसिडेंट होते हैं किसी भी सरफेस से फ्रॉम द नॉर्मल टू टुवर्ड्स, जो आप ड्रोन करते हैं तो वो अगर डेविएटेड नहीं होता है, अगर वो लाइट ऑफ रेज अगर डेविएटेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि द रिलेशन इज नॉट बीन अकर, इट इज डायरेक्टली इमर्ज्ड, वो डायरेक्टली ऑब्टेन होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि द रे ऑफ लाइट दैट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम and when it is refraction does not take place, कब उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जनरली ये कॉन्सेप्ट हमें पता है रिफ्रैक्शन का कि लाइट ऑफ रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाते हैं तो वो थोड़ा सा डेविएटेड होते हैं यानी रिफ्रैक्टेड होते हैं। पर कौन से ऐसा पोजीशन है जहां से एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर डेविएटेड नहीं होते हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे कि मीडियम टू में अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट अगर नॉर्मल टू टुवर्ड्स पे ही अगर इंसिडेंट रेज जनरेटेड होता है, मान लीजिए ये आपने सरफेस बनाया है, ठीक है, ये आपके पास दो सरफेस है और इसी सरफेस पे अगर इंसिडेंट हो रहा है लाइट ऑफ रेज, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जैसे sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 इज इक्वल टू n1/n, तो स्नेल्स का लॉ है, उसमें sin थीटा अगर आप 2 कंसीडर करेंगे तो n1/n2 हो जाएगा, तो sin थीटा 1 इज इक्वल टू n1/n2 इनटू sin थीटा, तो थीटा 0 क्योंकि एंगल तो बन ही नहीं रहा है। अगर इसी लाइन पे अगर नॉर्मल टू टुवर्ड्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो एंगल तो मिलेगा नहीं, तो एंगल अगर मिलेगा नहीं तो अगर वो स्ट्रेट नॉर्मल टू टुवर्ड्स अगर मूव करेगा तो उसमें किसी भी तरह का डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो एनी डेविएशन दैट कैन बी टेकन प्लेस इनटू द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा। तो एंगल डज नॉट बी चेंज, एंगल क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो डेविएटेड नहीं होगा जो इस पोजीशन पे इंप्लीमेंटेड होता है। तो स्नेल्स के लॉ में ऐसा हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं इट इज मोर देन टू अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, देखो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जनरली एनी मीडियम इज अ रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, जो वेलोसिटी वैक्यूम का है और उस मीडियम का जो वेलोसिटी है उसका दोनों का रेशियो से हमें मिलता है, तो n इज इक्वल टू c/v, इससे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। तो velocity of light is always be more than into the formation of vacuum, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट का होता है ऑलवेज भी मोर देन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर वो सबसे ज्यादा बाकी के मीडियम से, इसीलिए वैक्यूम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे हाई होता है कंपैरिजन टू द अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में उसका जो वेलोसिटी है वो सबसे हाई होता है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी मीडियम जो आप कह सकते हो दैट इज ऑलवेज बी मोर देन 1, तो किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो ऑलवेज बी हैविंग मोर देन 1 बिकॉज़ उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा होती है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। अभी हमें डिस्कशन करना है ये दो टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब और लेटरल शिफ्ट, इसके बारे में डिस्कशन करना है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा रफ करता हूं ताकि इस पे हम रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो डिराइव कर सकते हैं और लेटरल शिफ्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देखो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, इस फिगर के अंदर से ही हमें समझना है। एग्जामिनेशन में काफी बारे क्वेश्चन रहता है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ओके, एंड विद द हैविंग ऑफ नेसेसरी फिगर, फिगर के थ्रू हमें उस चीज को समझाना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, इस फिगर के अंदर आप देखोगे कि लाइट ऑफ रेज AB, लाइट ऑफ रे क्या है, AB है, लाइट ऑफ रे AB इज इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ थीटा 1, कौन सा एंगल पे बन रहा है, थीटा 1 एट द पॉइंट ऑफ B,
an angle of incident of ray AB on the point of B, it make an angle that is called theta 1. Okay, point B पे कौन सा एंगल बना रहा है? theta 1 into the formation of glass plate. Similarly अगर आप देखेंगे कि after that reflection, अभी यहाँ पे reflection के बाद the point B is reflected onto the theta 2. Point B जो होगा वह इस C के साथ एक एंगल बनाएगा जो क्या हो जाएगा? theta 2 हो जाएगा. BC at the point C that forms the theta 2 angle at the point C. Now on the surface of RS surface पे point C पे आपने उसको implementation किया है. Similarly CD जो होगा it create an angle of theta 4 as an emergent angle that is called incident angle और ये जो होगा emergent होगा. ये एक्चुअली ऐसा बनना चाहिए. अगर लाइट ऑफ रेज पास हो रहा है तो विदाउट एनी डेविएशन ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए. बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या दूसरे से तीसरे मीडियम में आया तो स्लाइटली डेविएटेड हो रहा है, इसलिए आप इसको इमर्जेंट रे कहेंगे. तो यूजिंग द स्नेल्स लॉ ऑन द सरफेस ऑफ PQ, पहले मैं PQ सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूं. तो n1 यहां पे दो एंगल है, n1 है और यहां पे n2 है, sin थीटा 1 है और sin थीटा 2 है. पहले उस सरफेस के लिए यूज करेंगे. यूजिंग द स्नेल्स लॉ ऑन अ सरफेस ऑफ PQ, मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग स्नेल्स लॉ, using Snell's law on surface PQ. ठीक है, Snell's law जो है PQ के सरफेसेस पे यूज करना है तो क्या हो जाएगा? n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, क्योंकि तो कांस्टेंट होता है थीटा फॉर्मेशंस के हिसाब से. तो थीटा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे n1 इज इक्वल टू क्या एयर है, तो n1 की जगह 1 लिखेंगे तो sin थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 की वैल्यू तो 1 है आपके पास, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको. तो sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2, ऐसी वैल्यू मिलेगी. n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2. ओके, नाउ अभी ये PQ सरफेस के लिए यूज किया है, अभी RS सरफेस के लिए मैं स्नेल्स का लॉ यूज करता हूं क्योंकि वहां पे भी हमारा फॉर्मेशन बन रहा है. सो यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस RS, ठीक है, RS सरफेस का बनाते हैं, RS सरफेस के लिए वहां पे यूज करते हैं. सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी दो एंगल्स बन रहे हैं. कौन कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पे एंगल n2 sin थीटा 3, n2 sin थीटा 3, n3 sin थीटा 4 ऐसा बन रहा है. तो आपको लिखना पड़ेगा वही कांस्टेंट कंपैरिजन n2 sin थीटा 3, n3 sin थीटा 4, राइट? ऐसा फॉर्मेशंस आपको बन रहा है. बट अगर आप देखेंगे कि n3 इज इक्वल टू मीडियम ऑफ एयर है, n3 की वैल्यू क्या है? मीडियम ऑफ एयर है. तो n2 sin थीटा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा 4. n2 sin थीटा 3 इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी sin थीटा 4. तो ऐसे दो अलग-अलग इक्वेशंस आपने डिराइव किए हैं. अल्टरनेट इक्वेशन 1 आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 डिराइव कर दिया. ठीक है, सो अल्टरनेट एंगल ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3. अब देखिए यहां से z बन रहा है, इट जनरली फॉर्म. तो थीटा 2 और थीटा 3 क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे. तो आप लिख सकते हो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3. ओके, सो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3. व्हाई? बिकॉज़ इट इज अल्टरनेट. कौन सा एंगल से? ये अल्टरनेट एंगल से. सो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 दैट फॉर्म्स अ अल्टरनेट एंगल. तो वो एंगल्स दोनों क्या हो गए? आपके सेम हो गए हैं. सो बाय इक्वेशन ऑफ दिस, ये जो इक्वेशंस आपने प्रूफ किया है तो इसके वजह से sin थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin थीटा 4. सो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 4. थीटा 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? थीटा 4 मिलेगा. सो ये जो इक्वेशंस मिल रही है थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 4, इक्वेशन हमें सोच करता है कि एंगल जो है वो इमर्जेंट एंगल हो या फिर फॉर्मेशंस में CD जो होगा वो सेम डायरेक्शन में, जो CD जो इमर्जेंट एंगल है वो सेम डायरेक्शंस में AB जैसा मूव करेगा और दोनों का जो एंगल्स का फॉर्मेशंस होगा वह आपका सेम होगा. और ये जो CE मैंने लिखा है, CE जो परपेंडिकुलर फॉर्मेशंस में डिस्टेंस, उसको आप लेटरल शिफ्ट कहोगे. ठीक है, तो मैंने आपको वही लिखा है कि लेटरल शिफ्ट मतलब क्या है. तो लेटरल शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, सो लेटरल शिफ्ट मतलब डेविएटेड रेज और एक्चुअल रेज के बीच का डिफरेंस. जैसे अभी यहाँ पे आप देखिए ये EF मेरा एक्चुअल रे होना चाहिए, CD जो मेरा
इन दोनों का बीच का डिस्टेंस को या डिफरेंस को आप लेटरल शिफ्ट कंसीडर करते हो। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टू पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दो पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में से अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास आउट होता है तो it should be displayed the directions between the two rays with the kind of the displacement of changes in places, that is called as a lateral shift. So amount of lateral shift which is generally having to be implemented from these two lines is generally having to be upon a perpendicular distance between the reflecting surface as well as the refractive index. तो ये हमेशा इन दोनों का बीच का डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट कहेंगे। क्लियर? तो दैट इज जनरली फॉर्मेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कैसे उसको ऑपरेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लाइट स्लैब, लेटरल शिफ्ट क्या है और कैसे हम उसको इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, राइट? So I hope कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो whatever we have to discussion on the today's session, just read it, write it, and all what is kind of answers. We'll meet tomorrow. We'll discussing about the other topic about the lens topic, lens formula, in which we have to derive the lens formula, its magnification, its characteristics, as well as discussing about the power of lens in your next lecture. I hope that today's session that is comfortable for you as a part of studies. So keep updating your knowledge by using different digital mediums of learning, as well as write the textbook clearly and read the answers and write the answers in your own words. Students, once again, stay home, stay safe, take care, and bye.